Hello student, today I am taking your class 12th business study chapter 1st nature and significance of management. This is the last part of this chapter which consists coordination, concept of coordination, features of coordination and importance of coordination. Let's start with the first slide that is called the meaning of coordination. Coordination means a process by which a manager synchronize the activities of different departments toward the achievement of common goal. सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट, ये है इसका मेन पर्पस. कोऑर्डिनेशन बेटा फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बट एसेंस है. इसके बिना मैनेजमेंट में कोई काम नहीं हो सकता. ठीक है, ये जान है मैनेजमेंट की. लेट्स check. In this slide we discuss about the meaning of coordination in detail. Coordination as a process by which managers synchronizing the activity of different department toward the achievement of one common goal, that is an organizational goal. कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रक्रिया है जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो डिफरेंट पर्सन्स कर रहे हो, उनको जोड़ता है, सिंक्रोनाइज करता है एक ही डायरेक्शन में, और वो क्या है, कॉमन गोल को अचीव करना. दूसरा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया है, प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस, दस इंश्योरिंग द अचीवमेंट ऑफ प्लान गोल विद मिनिमम कंटेंट. कोऑर्डिनेशन जो है ये भी इंश्योर करता है कि हम अपने प्लान गोल को, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को मिनिमम कंटेंट यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज से पूरा कर सकें. और किन चीज़ों पर ध्यान देते हुए ये काम हो सकता है? एग्जैक्ट क्वालिटी, टाइमिंग और सीक्वेंस. यानी कि कोऑर्डिनेशन और कुछ नहीं, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है एक्टिविटीज़ का, टाइम का और क्वालिटी का. ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाता है कि कौन कौन सा काम किस सीक्वेंस में करेगा और किससे लेगा, तभी तो कॉपरेशन डेवलप होगा. इज इट क्लियर? आ गई बात समझ? तो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट टू सिंक्रोनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज एंड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अचीवमेंट ऑफ वन कॉमन गोल. In this slide, we discuss about the feature of coordination. फर्स्ट फीचर है इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट. इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना. डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्शंस हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और कोऑर्डिनेशन इन सब को के काम को, इन सब के एफर्ट्स को जोड़ता है, तभी तो हमारा कॉमन गोल अचीव होता है. इज इट क्लियर? दूसरा फीचर है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. Unity of action, when the coordination help to synchronizing the all activity, different activity in the achievement of one common goal. It's mean it direct all the efforts, all the activities of the organization into a one common direction. That is called the achievement of common goal. It's give the unity of action to the whole efforts of the organization. Is it clear? The third feature that is it remains the function and responsibility of every manager. Obviously, it is the responsibility of every manager. We also know the different levels of management. Top level coordinate with the middle level to give them the guidance about their organizational objective, what to do, and then middle coordinate with the lower level, how to do, when to do, and by whom to do. And then the lower level coordinate with the worker by implementing these plan to achieve the goal. और वो उसी गोल को अचीव करने के लिए वर्कर से काम करवाता है. सो ईच सुपीरियर कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट. इज इट क्लियर? Next feature is deliberate function. Obviously, coordination is an orderly arrangement if you are ready or not. But management force you to cooperate with the other, and slowly by doing a regular practices on that orderly arrangement, one can be cooperate with the others. The inner feeling of cooperation will be rise. This will lead to the team cooperation, team spirit. ठीक है, ड्यू टू द टीम स्पिरिट
the organization can achieve not only their goal but also face any type of problem. Is it clear? Next, all pervasive. All pervasive, you know very well. All pervasive means coordination is needed by all type of organization, whether it is small, big, profitable, non-profitable, or religious, anywhere कोऑर्डिनेशन इज नीडेड. ऑर्डरली अरेंजमेंट की हर जगह ज़रूरत पड़ती है. आप देखो, आप मंदिर जाते हो तो भी वहाँ पे वो लाइन में लगवाते हैं. ऑर्डरली अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन. आप नहीं चाहते लाइन में लगना, फिर भी आपको लगना पड़ता है. दैट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट. ठीक है. सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि ऑल डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, वो भी एक दूसरे की हेल्प ना भी चेक करना चाहते हो, पर ऑर्डरली अरेंजमेंट है तो वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तभी तो यूनिटी ऑफ एक्शन होगा. इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो कि काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, तभी हम यूनिटी ऑफ एक्शन को अचीव कर पाएंगे और गोल को अचीव कर पाएंगे. इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. How coordination is important? Why we can say that the coordination is not a function of management but it is an essence of management. जान है मैनेजमेंट की. क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला यही है इम्पॉर्टेंट कि इट इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है. ठीक है. दूसरा क्या है कि इरेज इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट. हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग काम कर रहा होता है. फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस को देख रहा होता है, मार्केटिंग सेल परचेज को देख रहा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन क्रिएट कर रहा होता है, एचआर स्टाफिंग को देख रहा होता है. सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनके डिपार्टमेंट में आके इंटरफेयर करे. तो ये कोऑर्डिनेशन ही होता है जो उनको ऑर्डरली इन्फोर्स करता है कि वो एक दूसरे डिपार्टमेंट से, अलग अलग सेक्शन, दूसरे सेक्शन से मिल के काम करें. और जब वो मिल के काम करते हैं तो धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉपरेशन की फीलिंग डेवलप हो जाती है. ठीक है. और कॉपरेशन की फीलिंग टीम स्पिरिट लाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल ईजिली अचीव हो सकता है. अगला, प्रमोट्स हार्मोनियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. एक रूपता इम्प्लीमेंट लाना प्लान को कंप्लीट करने के लिए. जो भी टॉप मैनेजमेंट में प्लान बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए एक रूपता लाना, ये काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन. आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटअप होता है, फिर डिपार्टमेंटल गोल सेटअप होते हैं, फिर इंडिविजुअल गोल डिपार्टमेंट के अंडर सेट होते हैं. और इंडिविजुअल गोल को अगर हर व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ ही के अकॉर्डिंग ही सेटअप करे, तो उसको अचीव करे, तो कलेक्टिव मैनर में हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर जाते हैं. तो अपने आप हो गया ना हमारा हार्मोनियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. अगला देखिए, हेल्प इन मेंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ मोरल अमंग द एम्प्लॉइज. ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन ऑर्डरली अरेंजमेंट था. ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली मैनर में जो है इशू होती हैं, सीक्वेंटल मैनर में काम चलता है, हर एक का काम पता है, हर एक को वो काम करते हैं, और जो अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जो बुरा करता है उसको पनिश किया जाता है. सीक्वेंटल मैनर में काम करना होता है, चाहे आप किसी को लाइक करें या ना करें, आपने काम ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है. तो उस केस में क्या है, वर्कर्स का मोरल बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका टाइम एफर्ट जो है रिकॉग्नाइज होते हैं, और सिस्टमेटिक वे से चलने की वजह से उनके गोल, इंडिविजुअल गोल, आप कलेक्टिव मैनर में कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो सकते हैं. इसलिए कोऑर्डिनेशन फंक्शन ना होते हुए भी मैनेजमेंट के लिए एसेंस का काम करता है. इज़ इट क्लियर? जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ईगो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें ख़त्म करता है. इज़ इट क्लियर? चलिए